हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? खाना हुआ आपका? ठीक है। दोपहर में ठीक भोजन के उपरांत हिंदी की कक्षा होती है अक्सर, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी की 10वीं कक्षा का ये जो पाठ है, इंटरनेट क्रांति का जो दूसरा भाग है, अभी हम शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछली बार कक्षा में हमने जो सीखा उसका थोड़ा बहुत पुनरावलोकन करेंगे और उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो अंश आप यहां पे देख रहे हैं, इंटरनेट खान पान जितना आवश्यक बन गया है ना? रोज हम देखते हैं लोग इंटरनेट के बगैर, मोबाइल के बगैर अपना जीवन नहीं बिता सकते, ऐसा बन गया है अभी। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ. इस प्रकार इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक भाग बन चुका है. इंटरनेट दूसरा जो अंश है, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है ना? ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಲ ಇದು ಅಂತ. तीसरा जो अंश हम यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, कुछ साल पहले संदेश भेजने के लिए दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, है ना? वैसी हालत थी अपनी. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಆ್ಯಂಟೆನಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಶ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಆ GPS ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ವೈಫೈಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಟವರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ. चलिए आगे बढ़ते हैं, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. इंटरनेट बैंकिंग से दुनिया में किसी भी जगह हम पैसे भेज सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विश्व भर के लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. आप दूरदर्शन के अंतर्गत देख पा रहे हैं, रोज़ शाम को टीवी चैनल्स जो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, उनके अंतर्गत आप देख पाते हैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ एक बहुत ही संसाधक, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ हमने देखा. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಆಮೋದ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಮೋದನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೋದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि.
इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, आदेश, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। हाँ, अब तक मैंने आपके सामने आदर्श वाचन किया है ना, तो आपने ध्यानपूर्वक देखा। उनमें से कई ऐसे शब्द हैं ना जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। चलिए उन नए शब्दों के अर्थों के बारे में हम जानते एक एक करके दोस्तों। खोज, खोज का मतलब है सर्च, शोध करना, अन्वेषण करना, हुडुकाट अंत स्नेहितरे। अभिलेख, अभिलेख का मतलब है लिखित विवरण, रिटन डॉक्यूमेंट अंतरला अदु। यथावत, जैसे के वैसे, हेगिदियो हागे। पैरसी, आजकल बहुत सुन रहे हैं आप इसके बारे में है ना, चुरा कर नकली प्रतियां बनाना, कॉपीज न माडोदु, कल्तना माड़े। ओके। फ्रॉड, वो भी अंग्रेजी शब्द है। फ्रॉड का मतलब आपने जाना होगा, धोखा करके, मोसा अंतंता। पाश, पाश अंदरे बंधन, फंद अंतंತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ। सो ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तुमने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया। सही बात है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿकारी ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಂಥದ್ದು, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इडೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್। ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕೈ ಸೈಟ್ಸ್ है, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತು, ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ। ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ओके, सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, जैसे फेसबुक है ना, बीचों बीच है, नट्ट नड़वे ಇದೆಯಲ್ಲ फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इसके साथ कई ऐसे हैं, व्हाट्सएप है, वीचैट है, टिकटॉक है, जो आप जिनका प्रयोग करते जा रहे हैं। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇನ್ ಸೈಟೋं के कारण, ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಖಾನ್ ಪಾನ್, ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಷಭೂಷಾ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, के अलावा ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ ಆದಿ का प्रभाव, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಪ್ರಭಾವ शीघ्रातिशीघ्रವಾಗಿ ನಮ್ಮ समाज ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। इन सभी का प्रभाव बहुत ही शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है दोस्तों। नाविल्ली गमनिस्ता इದ್ದೀವಿ, यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, देश विदेश के लोगों की वेशभूषा का प्रभाव देखिए, है ना। यूं समझिए उस तरफ मैंने क्या किया है, देश विदेश के अलग अलग वेशभूषा के जो चित्र है ना, जिनका प्रदर्शन मैंने किया है। और यहाँ पर एक भारत में, एक अतुल्य भारत में कितने सारे संस्कृतियों का प्रदर्शन हम देखते हैं, अलग अलग संप्रदाय, है ना। इन वेशभूषाओं को एक बार देखिए, वहाँ पे विदेशी कई देशों के वेशभूषाओं का जो चित्र मौजूद है, एक ही दिन में हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए उन्हें मंगाते हैं और उन्हें पहन के खुश हो जाते हैं। देखिए मैंने जो पहना, ये जो अंग्रेज़ी लिबास है, पैंट शर्ट, उसी तरह जो अच्छा लगा उसे मंगाया, उसे पहन लिया। अपने हाल ही में देखना होगा, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಡತಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ
ರೇಷ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. चलिए आगे बढ़ते हैं. रहन सहन लाइफस्टाइल देखिए. मैंने एक काल्पनिक चित्र है वहाँ पे, यानी देश विदेश के लोगों का जो रहन सहन लाइफस्टाइल है हम अपना रहे हैं. यहाँ पे भारतीय संस्कृति का कुछ चित्र यहाँ पे मौजूद है. यहाँ अपने कुछ रहन सहन हो, इन सब का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. चलिए देखते हैं, आपको बहुत ही पसंदीदा देखिए. सबसे पहला वहाँ पे है वो अमेरिकी बर्गर है. ठीक है, बीच का अपना ये मसाल डोसा है ना, ये मसाल डोसा, और ये जो है वो अपना खान पान है. ठीक है, ये जो है ये जापान का ब्रेकफास्ट है दोस्तों. वहाँ पे आपका सबसे पसंदीदा चाइनीज़ क्या है, वो मंचूरी. और ये देखिए पास्ता आपने देखा है, ये नूडल्स जो है. इस तरह देश विदेश के खान पान से आप परिचित होते हैं फेसबुक जैसे साइट्स के ज़रिए, अलग अलग साइट्स के ज़रिए दोस्तों. तुरंत उसे बनाना सीख लेते हैं, उन्हें खाना सीख लेते हैं. आजकल ये मंचूरी तो अपना हो गया है भाई, ऐसा बन गया है. ये देखिए अलग अलग नृत्य, संस्कृति, कला का प्रभाव हम देख पा रहे हैं. आज भारत के कलाकार और विदेशी कलाकार वे क्या कर रहे हैं, अपनी जो संस्कृति और कलाओं का प्रदर्शन करने में वे माहिर बन रहे हैं. और हमारे बच्चे बहुत ही उससे खुश है. देखिए चाहे वो जैज़ हो, पॉप हो, है ना, अपना भंगड़ा हो, भरतनाट्यम हो, इस प्रकार संस्कृति और कला का प्रभाव बहुत ही जल्द हम सब पर पड़ रहा है. इस प्रकार पूरी तरह से इंटरनेट इतना हावी हो गया, ये सोशल साइट जो है, कि हमारे जीवन का ये एक अविभाज्य अंग बन चुका है. इस प्रकार सोशल साइट्स के बारे में हमने अब तक जाना दोस्तों. ई गवर्नेंस क्या होता है सर? तुमने अच्छा सवाल किया. ई गवर्नेंस का मतलब है, ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, चाहे वो अभिलेख हो, अभिलेख का मतलब बताया था मैंने, रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित आदेश, है ना, अभिलेख, कोई भी आदेश हो, सरकारी आदेश हो, छात्रों आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. आप यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, एक सरकार जो है, सार्वजनिक व्यवस्था हो, पर्यटन की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, है ना, व्यवसाय की बात हो, क्या कर रहे हैं, ई गवर्नेंस क्या कर रहे हैं. ई गवर्नेंस के जरिए बहुत ही काम ये आसान हो पा रहा है. सरकार के सभी कामकाज का विवरण हमें आसानी से मिल जाता है और यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. आज एक किसान, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಅವನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ. इससे प्रशासन में पारदर्शकता, यानी प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. ಇದರಿಂದ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ के कामों में एक ಪಾರದರ್ಶಕता ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ 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 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ತಾನು ಕಟ್ಟದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ठीक है, अच्छा आदेश, तुम कुछ कहना चाहते हो, बोलो क्या प्रश्न है. बताया सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. जी हाँ, बिल्कुल सही बताया तुमने. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. इंटरनेट निजವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವರವೇ. आज जीवन के हर क्षेत्र में वो अपना कमाल दिखाया है. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು
ವಂಡರ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೈಸೆ वो ಚಿಕಿತ್ಸಾ हो ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿರಲಿ, ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೃಷಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ, विज्ञान साइंस शिक्षा शिक्षणದಲ್ಲಿ आदि क्षेत्रों में इंटरनेट ने अपना कमाल दिखाया है. देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में भी ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಸೇನೆ, वायुसेने ಮತ್ತು जलसेने ಆಗಿರಲಿ, इनमें भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. यहाँ देखो चिकित्सा के क्षेत्र में यह कैसे मुमकिन हो पाया है. आज हर एक बड़े बड़े यंत्र है जो चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट के ज़रिए जिनका संचालन किया जा सकता है. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आगे देखते हैं कृषि के क्षेत्र में. देखिए कृषि के क्षेत्र में आप मानेंगे नहीं दोस्तों, 1 किलो चावल के लिए लगभग यूं समझिए एक टैंकर भर पानी चाहिए हमें. ಮಕ್ಕಳೇ, 1 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಒಣಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವರ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶ ಮಷಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಾಗಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಒಂದು ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಲನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ಯಾವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. चाहे वो मिट्टी की आर्द्रता हो, पानी का उपयोग हो, जिसके संचालन में यानी कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. मैं चाहता हूँ कि आप भी भविष्य में कृषि में BSc करें और ये नए नए फसल उगाए और देश को आत्मनिर्भर बनाएं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है. जैसे मैंने पिछली कक्षा में डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेकर आज के शिवन साहब तक मैंने जिनका जिक्र किया था. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ओके, तो इस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा योगदान है. आप शिक्षा के क्षेत्र में देख पा रहे दोस्तों, है ना, आजकल ये ऑनलाइन का दौर चल रहा है. कई ऐसे छात्र यूट्यूब के ज़रिए देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं. मैंने बीचों बीच कुछ ऐसे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज़रूर मदद करते हैं. जैसे आप बहुत ही पॉपुलर साइट्स है ये, विकीपीडिया के बारे में आपने देखा होगा, गूगल स्कॉलर है वहाँ पे, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, ये शिक्षा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्च इंजिन्स है दोस्तों. और देश के सुरक्षा दलों के कार्यवाही में आप देख रहे हैं आजकल GPS टेक्नोलॉजी के ज़रिए. देखिए यहाँ पे एक फौजी वो GPS टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो ढूंढ रहा है, छानबीन कर रहा है. आज हर एक डिवाइस, हर एक फौजी क्या है, इंटरनेट के ज़रिए या हर एक मशीन या हर एक डिवाइस को क्या कर सकते हैं, संपर्क संभव हो चुका है दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. अचानक भाई इंटरनेट में ये पौराणिक गाथा कहाँ से आ गया, है ना. एक पौराणिक कथा है दोस्तों, कबंद बाहें करके. सबसे पहले मैं वो कहानी सुनाऊंगा. एक बहुत क्रूरी राक्षस का चित्र है यहाँ पे, कबंद करके, है ना. कबंद नाम का एक राक्षस था रामायण के काल में, जिसकी बाहें लंबी होकर पहुंच जाती थी, है ना. कहा जाता है उसने अपनी बाहों में श्री राम और लक्ष्मण को फंसाया था. यानी सीता मैया की तलाश में, खोज में जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण निकले, बीच में राक्षस आ पड़ा और उनको अपने बाहों में जकड़कर फंसाने का जो क्या किया था, उसने ऐसी कोशिश की थी. तो उसके बाद क्या हुआ, उन कबंद बाहों को क्या किया, तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था. आप यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, श्री राम और लक्ष्मण ने क्या किया, उसकी बाहों को काट दिया था. और पाठ में इस
इस कहानी का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬಂಧ ರಾಕ್ಷಸನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, पूजा तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? हाँ, सचमुच एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया पूजा ने। इंटरनेट एक अभिशाप भी है, यानी इंटरनेट ಒಂದು ಶಾಪ ಕೂಡ। पूजा ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ। इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट न कारणದಿಂದಾಗಿ पायरसी का मतलब बताया मैंने, चोरी करके क्या करना, नकली प्रतियां बनाना उसके। बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। सूचना और खबरों की चोरी को क्या कहते हैं, ಒಬ್ಬರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದಿ ಬಡ್ ರಹಿ ಹೈ। ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ। ಚಾಟಿಂಗ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ವಿಚಾಟು ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸಮಯದ ಪರಿವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इसके कबंध पाश में फंसे हुए हैं। ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬಂಧ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಅವರು ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ। और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल करते हैं, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳು। ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಯಸ್ಸು, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಏಜ್ ಕೂಡ। 13 ಇಂದ 19 ತನಕ, ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾಳ ಟೀನೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ, है ना। यहाँ पे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हम हासिल करते हैं। ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳೇ। इसलिए हम लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना होगा। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು। ಸಚೇತ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ठीक है। मैं इस बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। परीक्षा के नज़रिए से इंटरनेट एक अभिशाप है, इस पर तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम कोई गलत बात आपसे नहीं जानना चाहते, हम कोई गलत बातें भी नहीं पूछेंगे, गलत बातें भी नहीं सिखाएंगे, मगर आपको सतर्क रहना होगा। ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಿಂದ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು, ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ तो हो गया भाई, अभी थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी करते हैं। चले, मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, 5 रिक्त स्थानों को मैंने क्या किया, यहाँ पे बोर्ड पर प्रदर्शित किया है। इन रिक्त स्थानों को न सिर्फ आपसे क्रियाकलाप करवाने के लिए नहीं किया मैंने, इसके ज़रिए पाठ को दोबारा एक बार उसका पुनर्मनन करेंगे, अब तक हमने क्या सीखा है, ठीक है। हाँ, चलिए, सबसे पहला प्रश्न, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है, क्या है। वेरी स्मार्ट, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट आधुनिक डैश का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, क्या है। बिल्कुल सही बताया तुमने, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी डैश भेज सकते हैं, मैंने बताया था क्लास पर, बिल्कुल सही बताया तुमने। इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी हम क्या भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत सही बताया तुमने, विचार विनिमय कर सकते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक डैश खोज है। शुरुआत में मैंने बताया था आपको, जी हाँ बिल्कुल, एक क्रांतिकारी खोज है।
चलिए, इस रिवीजन के दौरान इन प्रश्नों का उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग ने डैश को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग इडी जगत्तन्न नानेन ಹೇಳಿದ್ದೆ। सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है। मैंने बताया था आपको, जी हाँ बिल्कुल, पारदर्शी, है ना दोस्तों। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक बहुत बड़ा डैश है। क्या है बताइए? बिल्कुल सही, वरदान है। हमें इंटरनेट से डैश रहना चाहिए। मैंने आपको एक किया था, बताया था मैंने आपको, सचेत रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला, इंटरनेट एक वरदान है तो वह अभिशाप भी है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। ऐसे अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उनमें से 2 अनुरूपता के प्रश्न मैं आपको परीक्षा के नजरिए से पूछना चाहता हूं। तो पहले देखते हैं, पायरेसी अगर एक अभिशाप है तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? आपने अंदाज लगाया होगा, मैंने वहां पे सुराग दे ही दिया है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग एक वरदान है। बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं? विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, तो ई प्रशासन से क्या होता है दोस्तों, बताएंगे आप? ई प्रशासन से प्रशासन का यथावत विवरण मिलता है। ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ। ठीक है, ये अनुरूपता के प्रश्नों को आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पाठ के अंत तक आए। चलिए, मैं गृह कार्य देने जा रहा हूं। बहुत ही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे बताइए? परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है 3 या 4 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट एक वरदान है, कैसे स्पष्ट कीजिए? देखिए, इंटरनेट के बारे में बहुत ही धनात्मक बातें हमें जाननी है, आप इन्हें लिख लीजिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जरूर जानिए। आप पहले लिखिए, आप अपने अध्यापक को दिखाइए और उन्हें क्या करिए, करेक्शन अपने अध्यापक से करवाइए। ठीक है, तो इस प्रकार मैं समझता हूं 2 किस्तों में, 2 भागों में मैंने इंटरनेट क्रांति जो पाठ पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। आप सब जान गए होंगे। परीक्षा के नजरिए से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे अब तक आपने सुना, तो इस प्रकार यह पाठ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।